بچہ انشاءاللہ 2-3 بیگھے کی جگہ آپ کو 10 خرید کر دے گا یا نہیں بھائی؟ بالکل دے گا۔ اور اگر آپ نے 10 بیگھے زمین کے بجائے 15 بنا لیا اور بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دی، صحیح تربیت نہیں دی اور صحیح راستہ نہیں دکھایا تو جو آپ کا 10 بیگھہ ہے آپ کی آنکھ ہونے کے بعد بند ہونے کے بعد وہ 10 بیگھے زمین 5 بیگھے اور 5 بیگھے کے بجائے 0 بیگھے پر آ سکتا ہے اگر وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اولاد صحیح نہیں نکلی ہے تو اس کو 0 پر لا سکتی ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ہم کو پڑھایا الحمدللہ، سمجھ رہے ہیں نا، محنت سے پڑھایا۔ باپ سے زیادہ والدہ نے میری محنت کی اور میں نے الحمدللہ بہت محنت سے تعلیم بھی حاصل کی۔ اس کا نتیجہ جانتے، اس کی مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، میں اپنی مثال دے رہا ہوں۔ میرے والد صاحب کو میرے دادا نے جتنی زمین دی تھی اس میں ہم نے کمی نہیں کی بلکہ بہت زیادہ زمین خریدی اس میں ہم نے دونوں بھائی نے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پڑھنے لکھنے کی برکت سے۔ یہ بہت چھوٹی بات میں نے آپ سے کی، زمین جگہ کی، ویسے سمجھانے کے لیے کی، ورنہ علم کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہوتا ہے۔ علم کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہوتا، دنیا تو یوں ہی قدموں میں آ جاتی ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے علم حاصل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ بہت سارے لوگ اس روایت کو اس طرح بیان کرتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، حالانکہ مسلمہ کا لفظ روایت میں نہیں حدیث میں، بلکہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، لیکن مسلم میں مسلمہ بھی داخل ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ فریضۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کا عالم مفتی بننا تو ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا جس سے وہ حلال و حرام کے درمیان امتیاز کر سکے، اتنا علم حاصل کرنا جس سے وہ اپنے متعلقین کے حقوق کو پہچان سکے اور ادا کر سکے، اتنا علم حاصل کرنا جس سے اپنے ماں باپ کے حقوق کو جان سکے، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ اپنے شوہر کے حق کو جان سکے، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ اپنی بیوی کے حق کو جان سکے، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ اپنے پڑوسی کے حقوق کو جان سکے، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ اپنی اولاد کے حقوق کو حاصل کر سکے، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ اللہ کے حقوق کو پہچان سکے، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے وہ رسول کے حقوق کو پہچان سکے۔ اگر اتنا بھی علم حاصل نہیں کیا تو وہ ان حقوق کو کیسے ادا کرے گا؟ اگر ہم نے بنیادی تعلیم بھی بچوں کو نہیں دی تو یہ بتائیے وہ بچہ قرآن ہی صحیح نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ آپ جانتے ہیں ایک تو قرآن ہم لوگوں نے پڑھا پہلے جو ہوا کرتے تھے کم پڑھے لکھے لوگ تھے اور لوکل مولوی صاحبان ہوتے تھے اور وہ قرآن جیسے بیچارے ان کو آتا تھا ویسے ہمیں پڑھا دیتے ہیں۔ اب جو بچے پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ الف بے تے پڑھتے ہیں، الف با تا، بولو الف با تا، الف با تا، اور پہلے کیا پڑھتے تھے؟ الف بے تے سے الف بے تے۔ کہاں گئے تھے؟ کتے کی کھوپڑی میں سو گئے تھے، یہی بولتے تھے، ہے نا؟ تو بہت فرق آ گیا نا، پہلے کتے کی کھوپڑی میں سلاتے تھے، اب الف با تا پڑھ کے بچے تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے جو لوگ انگلش جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ تلفظ پروننسیشن کا بہت زیادہ دخل ہے کسی بھی لینگویج اور کسی بھی زبان میں۔ اگر ہم نے تلفظ بدل دیا معنی بدل جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ قرآن شریف کا ایک لفظ بدلنے سے معنی کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ مولانا ارشاد صاحب ان بچوں کو بتاتے ہیں کہ بچوں تا ایسے نکلے گی۔ اب دیکھیے 5 حروف میں بتاتا ہوں جو عام آدمی ایک ہی طرح سے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ 5 حروف الگ الگ انداز میں نکلتے ہیں، ان کا الگ الگ تلفظ ہے۔ جیسے الف با تا کے بعد کیا ہے بولیے تو آپ لوگ بولیے
सा बच्चे नहीं, आम लोग बोलो सा सा, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद जो आता है जीम हा खा दाल जाल रा जा, सा के बाद क्या है? सीन सीन। और उसके बाद क्या है? शीन और उसके बाद क्या है? स्वाद। अब देखिए, जो आम लोग हैं पहले जो हुआ करते थे वो सा को, सीन को, शीन को और स्वाद को सबको बराबर पढ़ते थे, सबको बराबर पढ़ते थे। हालांकि वो चारों अलग अलग अंदाज में निकलते हैं। सा जो निकलती है वो जुबान की नोक, सनाया इससे निकलती सनाया उलिया की जड़ से, है ना, ता। सीन निकलती है सीधी के साथ, फिर शीन निकलता है अलग अंदाज में, फिर स्वाद निकलता है जुबान की करवट से थोड़ा मोटे अंदाज में। तो इन हुरूफ के बदलने से, इसी तरह देखिए छोटा काफ है और बड़ा काफ है। ए बच्चों शोर मत मचाओ, बहुत शोर मचाते तुम लोग, आराम से सुनो बेटा, थोड़ी देर बयान करूंगा दिमाग। छोटा काफ और बड़ा काफ दोनों में बहुत फर्क है। जैसे कि इंग्लिश में आप किसी लफ्ज को लिखिए, किसी वर्ड को के से, है ना, जैसे के फॉर काइट, काइट मींस बिल्ली, पतंग है, और क्यू फॉर क्वीन, क्वीन के माने क्या है? रानी। तो अब बताइए क्यू के में और क्यू में फर्क तो होगा, इसी वजह से तो जुबान वाले ने के अलग लिखा है और क्यू अलग लिखा है। काइट को क्यू से नहीं बोल सकते हैं और क्वीन को के से नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना, गलत हो जाएगा। इसी तरह कुरान में जो लफ्ज जिससे शुरू हुआ है उसी से मुंह से निकाल कर पढ़ना जरूरी है। अगर हमने लफ्ज बदल दिया तो मानी बदल जाते हैं। मैं मिसाल देता हूँ एक, कुल वल्लाह तो सबको याद है ना? अरे याद है सबको? हाथ उठा के बताओ किसको याद है। कुछ लोगों को याद नहीं लगता, याद है सबको? माशाअल्लाह, डाउन करो। अब बताइए कुल में जो है छोटा काफ है ना, बड़ी काफ, छोटा काफ है, बड़ी काफ, बड़ा काफ है, बड़ा काफ है। तो कुल हुवल्लाहु अहद, इसके माने है ऐ नबी फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। क्या माना है इसके? ऐ नबी फरमा दीजिए अल्लाह एक है। तो कुल के माने हैं, बड़े काफ से कुल के माने हैं ऐ नबी आप कहिए, ऐ नबी आप फरमाइए लोगों को कि अल्लाह एक है। तो बड़े काफ से कुल के माने क्या बताया मैंने? ऐ नबी आप कहिए। कुल के माने क्या है? ऐ नबी आप कहिए, फरमाइए। इसी को अगर हम नादानी में और न पढ़े हुए हों तो छोटे काफ से पढ़ देते हैं हम लोग, कुल हुवल्लाहु अहद, है ना। तो अब ये सिंपल काफ से जब हम कुल पढ़ेंगे तो अब माने कुछ और हो जाएगा। छोटे काफ से जब कुल पढ़ेंगे तो उसके माने हो जाएगा ऐ नबी खाइए। क्या माने हो जाएगा? ऐ नबी खाइए। हालांकि बड़े काफ से है जिसके माने क्या बताया था मैंने? ऐ नबी फरमाइए। और छोटे काफ से कहेंगे तो ऐ नबी खाइए। माने में फर्क है ना बहुत ज्यादा। यही फर्क आपको ये जो खड़े हैं आपके मौलाना हजरत मौलाना इरशाद साहब, ये आपके बच्चों और बच्चों को बताते हैं, जिसको हम और आप समझ नहीं पाते। अच्छा, इन्ना आतेना तो सबको याद है ना? हाथ उठा, हाथ उठा। मैं हाथ इसलिए उठाता हूँ नींद ना आ जाए। इन्ना आतैना कल कौसर, इसमें छोटी काफ, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इसका तर्जुमा सुनो, गौर से सुनो। हे बच्चों शोर मत बजाओ। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई लड़का, लड़की तो बाहयात थी, जब लड़के जो पैदा हुए थे सब अल्लाह को प्यारे हो गए बचपन में, ठीक है ना। इब्राहीम और कासिम और ताहिर, ये सब किसको अल्लाह को प्यारे हो गए थे, इंतकाल हो गया था। तो मुशरिक लोगों ने आपको ताना दिया। क्या ताना दिया? कि मोहम्मद का कोई भी नाम लेवा नहीं रहेगा दुनिया में, मोहम्मद की वफात के बाद इसका जिक्र दुनिया में नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में जवाब दिया, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको जामे कौसर अता किया है,
फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, लिहाजा आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इन्न शानियाका हुवल अब्तर, बेशक आपका दुश्मन, आपका मुखालिफ जो है उसी का नाम मिटेगा, वही गुमशुदा हो जाएगा, आपका नाम मिटने वाला नहीं है। शायर ने कहा है, क्या कहा है? शायर ने कहा है, तकबीर में, कलमा में, नमाजों में, अज़ा में, तकबीर में, कलमा में, नमाजों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। फरमाते थे आदम के मुझे खुल्द बरी में, फरमाते थे आदम के मुझे खुल्द बरी में, लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। इस नाम की अजमत दिले उशाक से पूछो, इस नाम की अजमत दिले उशाक से पूछो, जहाँ आ गई तन में जुलिया नाम मोहम्मद। माशाअल्लाह। मोहम्मद का नाम कभी भी मिटने वाला नहीं। ये तो मैंने ऐसी सुना दी बात इस आयत के ज़िम्न में, इसका शान नुज़ूल है। अल्लाह ने कहा है नबी आपका नाम मिटने वाला नहीं है, क़यामत तक चलता रहेगा। जो बोल रहा है ऐसा उसी का नाम क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। तो इस आयत में जो है तर्जुमा क्या है, इन्ना आतिना कल कौसर का बताइए, अभी तो बताया था मैंने। ऐ नबी हमने आपको जामे कौसर अता किया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, लिहाजा आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वन्हर और कुर्बानी कीजिए। वन्हर के माने क्या है? कुर्बानी करनी। अच्छा, वन्हर कौन सी हा से है? बोलो, छोटी हा या बड़ी हा? हा। शाबाश, देखो माशाअल्लाह बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया है। वन्हर बड़ी हा से, इसके माने क्या है? कुर्बानी। कुर्बानी कीजिए। अगर इसी को हम अपने बच्चों को मकतब तालीमुल कुरान में नहीं भेजेंगे, मदरसा तालीमुल कुरान में नहीं भेजेंगे और मुदर्रिस उसको बढ़िया नहीं पढ़ाएगा, तलफ़ुज़ निकालना, हुरूफ निकालना नहीं सिखाएगा, तो वो बच्चा वन्हर को वन्हर पढ़ देगा छोटी हा से। ठीक है, तो वन्हर बड़ी हा से इसके माने क्या बताया मैंने? बताइए तो, कुर्बानी कीजिए। और जब बच्चा नहीं पढ़ेगा और बोलेगा वन्हर छोटी हा से, या हम और आप बोल देंगे, तो इसके माना है ऐ नबी झिड़किए। हालांकि उसका तर्जुमा क्या है? नबी कुर्बानी कीजिए। जब छोटी हा से बोल देंगे तो क्या माने हो जाएंगे? ऐ नबी झिड़किए, डांटिए। जैसे कुरान में दूसरी जगह पर है, अम्मा साइल फला तनहर, सूरह दुहा में, कि मांगने वाला जब आए फला तनहर छोटी हा से, उसको मत झिड़को, उसको मत झिड़को। इसी को बड़ी हा से वहाँ लाया है सूरह कौसर में, जिसके माने है नबी कुर्बानी कीजिए। तो लफ्ज़ के बदलने से मानी बदले या नहीं, ये बताओ। एक और मिसाल देता हूँ, तब आगे बात करूँगा। सूरह इलाफ